Assalamu alaikum. So, sense of smell is our topic today. What smell is? Everybody knows. And I guess this is the most interesting topic in nervous system. The sense of smell, sense of taste. So let's start our lecture with this image. आप जब भी किसी चीज को स्मेल करते हैं तो आपकी सेंस ऑफ स्मेल अगर तो वर्किंग हो तो हमें स्मेल आती है, और अगर ना हो और अगर हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो इससे स्टिमुलेट ना हो तो हमें स्मेल नहीं आती है। ऑब्वियसली नहीं आएगी क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम तक वो स्टिमुलेशन जा ही नहीं रही है। ये कब होता है? फ्लू, कोल्ड और बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जिसके अंदर हमारे जो नोज के रिसेप्टर्स हैं वो स्मेल को सेंस नहीं कर रहे होते। एज लाइक इन कोविड, आपने अक्सर सुना होगा कि इनकी स्मेल की सेंस चली गई है, उन्हें स्मेल नहीं आ रही। सो क्या होता है कि एक्चुअली उनके जो बर्ड्स होते हैं अंदर, जो स्मेल को परसीव कर रहे होते हैं, जो टेस्ट को परसीव कर रहे होते हैं, वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो स्टिमुलस लेकर आगे तक जा ही नहीं पाते और हमारे नर्वस सिस्टम तक स्टिमुलस जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें सेंस ऑफ स्मेल नहीं आती है। सो सेंस ऑफ स्मेल और olfaction is originated in the nasal cavity. As you guys all know that nasal cavity is the passageway for the respiration, the start of the respiration as the air goes inside. There are some sensory nerves of the smells, like the first nerve is the olfactory nerve that is originated and is taking the stimulus. They originate as the chemoreceptors at the sensory nerve endings in the mucous membrane of the roof of the nasal cavity above the superior nasal concha. These are the nerve endings which are coming, and this is the nerve which is going towards the brain. Now you can see this is the olfactory bulb in the brain. This is the frontal sinuses, and it is present at the back of that. Cerebriform plate of the ethmoid bone. That is the ethmoid bone, and this is the olfactory tract leading to the nerve tract to going toward the brain. And the septal olfactory nerves, these are the septal olfactory nerves which are coming in the nasal passages and will receive the stimulus, and this is the vestibule. So this is an overview of the structure of nose. Let's come towards the physiology. फिजियोलॉजी क्या है? हम एनाटमी कभी भी, मतलब अगर आप लोगों ने एनाटमी डिटेल में पढ़ी हो ना किसी एक ऑर्गन की, तो उसकी फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिजियोलॉजी एनाटमी की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। फिजियोलॉजी हमारे समझ में जल्दी आ जाता है, एनाटमी समझ में आना कम और याद करना ज़्यादा। सो द फिजियोलॉजी ऑफ द स्मेल इज कि हमें किस तरह से स्मेल परसीव होती है, उसके सेंसेस कैसे आगे से जाकर कीमो रिसेप्टर्स को उसको स्टिमुलेट करती हैं, और वो स्टिमुलस कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तमाम के तमाम ऑर्डर्स मटेरियल जो होते हैं वो हमें एक वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से निकालते हैं। They give off the volatile molecules which are carried into the nose and inhaled into the air, and even in very low concentrations we can feel the smell. Why? When dissolved in the mucus, they stimulate the olfactory chemoreceptors. So olfactory chemoreceptors are stimulated. The air entering the nose is warmed. Convection currents carry eddies of inspired airs to the roof of the nasal cavity. As we all know that if there is no any kind of blockage as like the nose hairs, then the bacteria or other dust particles will enter into our passage. So there is hairs, there is some mucus to catch the dust particle. So air entering the nose is warmed there, and convection current carries eddies of the inspired air to the roof of the nasal cavity.
Sniffing concentrates volatile molecules in the roof of the nose. So they are concentrated over there. Sense of smell, sense of taste are closely related. Whenever our sense of smell is not working, then definitely our sense of taste will not work. Sense of taste is not working, then it might be possible that sense of smell will not work. Like they are interconnected. If you are having cold or flu, you will feel no smell, no taste. So it means that they are related to each other. So they can even affect the appetite. How they can affect the appetite? If they have a pleasant odor that would improve your appetite, like they can increase the salivation and stimulate the digestive system, and will be a very appetizing one. Like you can say, if your mom is making biryani at home, and if you love biryani, then it will increase your appetite. Like, yeah, I am hungry, mama kab banegi biryani and I want that. जितनी देर तक स्मेल आती रहेगी, आपकी एपिटाइट जो है ना वो बेचारी कहती रहेगी कि बस मुझे अब मिल जाए. So it will increase the salivation and stimulates the digestive system. Or if it is not good, if it is not pleasant, then it will obviously decrease your appetite. Like, ye kya hai? I don't want to eat that. No, I'm not hungry at all. When accompanied by the sight of food, such as the sense of smell and sense of taste, closely related and have many powerful effects on the memory. Like, we have some memories with the smell. Like, मैं अब किसी के घर जाती हूँ, उनके घर से किस किस्म की खुशबू आती है, तो whenever I'll smell that odor, that fragrance, that smell, I'll say कि यार ये स्मेल मैंने कहीं सूंघी हुई, हाँ ये स्मेल वहां से आती थी, हाँ ये ऐसा था. और हमें भी अक्सर ऐसा होता है कि किसी परफ्यूम की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है. इवन वो परफ्यूम लगाकर कोई हमारे पास से भी गुजरे तो हमें उसकी बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही होती है. हम कहते हैं यार ये हमने कहीं सूंघी हुई है, अच्छा ये वो वाला परफ्यूम था. So inflammation of the nasal mucosa prevents the odorous substances from reaching the olfactory area of the nose, and that will cause the loss of sense of smell. That is called anosmia. And the usual cause is cold. So in cold, your nasal mucus is inflamed and prevents the odorous substances from reaching the olfactory area of the nose. If you'll see in this, the olfactory neurons that are present in there, you are smelling, and the aromatic substances will give you the aromatic molecules, the volatile molecules which are coming into your nasal cavity, and it will go towards the olfactory bulb in your brain, and it will stimulate, and the stimulus will be perceived over there by synapses and will tell you and will memorize कि जी कौन सी स्मेल है, अच्छी है, बुरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अब जैसे कि जलने की स्मेल हमें जैसी आती है, हमारा दिमाग फौरन एक्टिवेट हो जाता है, यार जलने की स्मेल कहीं से आ रही है, देखो देखो. सुई गैस की स्मेल हमें आ रही होती है तो हम कहते हैं यार कहीं से गैस की स्मेल आ रही है, हम फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, देखते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है ना, दिमाग काम कर रहा है. हम कह रहे हैं कि जी ये जो स्मेल है इट कुड बी बैड, ये जो स्मेल है दिस इज गुड, इट कुड बी हार्मफुल, इट कुड नॉट बी हार्मफुल. सो अब हमें सोते हुए में कोई गुलाब की खुशबू आ जाए तो विल बी लाइक यार ये क्या हो रहा है, मतलब एक मिनट, ये क्या, मतलब कहाँ से आई ये स्मेल. हमें अजीब लगने लगेगा ना कि यार ये कहाँ से आई है स्मेल, क्या रीजन थी, क्या था. If you'll see, this is a detailed diagram of the olfactory bulbs and their presence in the receptors in the hairs. Like this is the image जो मैंने आपको पहले दिखाई थी. इसमें olfactory bulb था, ये रहा olfactory bulb in which the synapses are played, and the cerebriform plate, and this is the cerebriform plate of the ethmoid bone. And this is the nerve, olfactory nerve, the filaments of the olfactory nerve. Supporting cells are there, olfactory receptor cells are there. These are the olfactory receptor cells, and the olfactory hairs, that is also called cilia, that will perceive the volatile molecules. And this is the muscularis layer, the mucus layer, sorry, that will secrete mucus. So when an individual is continuously exposed to an odor, perception of the odor decreases and ceases within a few minutes. The loss of perception affects only the specific odor. अगर आप किसी एक जगह पर काफी देर बैठे रहे, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनका घर ही नाले के पास होता है,
उनको आदत हो जाती है नाले की स्मेल की, उन्हें अजीब नहीं लगता, उन्हें वो जो स्मेल होती है वो बुरी नहीं लगती, और उनके लिए वो स्मेल स्मेल ही नहीं होती। लेकिन व्हेन एवर वी गो देयर, हमें ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, वी कांट सिट, वी कांट, मतलब हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते, हम तो यहाँ से एक लम्हे में बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट अडेप्टेड टू दैट स्मेल। हम उस स्मेल को कंटिन्यूसली एक्सपोज नहीं कर रहे होते हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर जूतियों के कारखाने हैं, जहाँ पर हर वक्त सोल्यूशन की स्मेल आ रही होती है। अब कुछ लोग होते हैं जिनका सोल्यूशन की स्मेल दिमाग पे चढ़ने लग जाती है, कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद होती है। अब जिनके दिमाग पे चढ़ने लग जाती है वो स्मेल, अगर वो ऐसे इलाकों में जाएंगे तो वो कहेंगे यार मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पर, मुझे जाना है, आई कांट स्टे हियर। तो वो क्या होता है कि आप उस चीज को अपोज कर रहे होते हो, उस ऑर्डर को अपोज कर रहे होते हो, उसके एक्सपोजर को अपोज कर रहे होते हो, क्योंकि आपको वो अच्छी नहीं लग रही होती। लेकिन आप कुछ देर वहां बैठे रहो, 1 घंटा 2 घंटा बर्दाश्त करते रहो, तो एक वक्त आएगा कि आप उसकी यूज टू हो जाओगे। आप कहोगे हाँ ठीक है। अब कोई बाहर से आने वाला अगर कहेगा ना यार स्मेल आ रही है, तो आप कहोगे हाँ मुझे पहले आ रही थी अब नहीं आ रही मुझे स्मेल। वो क्या होता है कि आपका अडेप्टेशन हो जाती है, सेंस ऑफ स्मेल आपकी उस चीज को अडेप्ट कर लेती है। अब अगर आपको उस वक्त जब आपको ये आपने अडेप्टेशन कर ली हुई है उस दौरान अब कोई और स्मेल आती है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई और स्मेल भी नहीं आएगी, मतलब ये कि सिर्फ उस स्मेल के लिए अडेप्टेशन हुई है आपके अंदर। दूसरी जो स्मेल है वो आपको आएगी, सुनाई देगी। अब जैसे कि ऐसा होता है हम कजन में ना, मुझे मेरा कोई कजन कहता है कि यार यहाँ से ना स्मेल आ रही है, तो और मुझे वहां से नहीं आ रही, लेकिन मैं पहले से बैठी हुई होती हूँ, कहती यार मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तो अगर से कहते हैं कि ना अच्छा आपकी स्मेल की सेंस ठीक है, तो मैं फौरन चेक करती हूँ, मतलब कोई भी परफ्यूम सब्सटेंस ली मैंने, उसको मैंने स्मेल करके चेक किया कि हाँ हाँ मुझे ठीक है, मुझे स्मेल आ रही है। तो स्मेल आ रही है इसका मतलब है कि मेरी सेंस ऑफ स्मेल ठीक है। तो मुझे वो वाली स्मेल क्यों नहीं आ रही है? वो कहेगा आपको ये वाली स्मेल क्यों नहीं आ रही है, इसका मतलब ये क्या बात हुई? तो एक्चुअली आपकी नोज उस चीज को अडेप्ट कर चुकी होती है, ये रीजन होता है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी सेंस ऑफ स्मेल, जो कि ऑन एंड ऑफ रिलेटेड है सेंस ऑफ टेस्ट से। अब हम सेंस ऑफ टेस्ट भी पढ़ते हैं। ये आपका पहला लेक्चर था, इससे मैंने पूरा का पूरा सेंस ऑफ स्मेल जो है वो कवर करवा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अम, आपको और किसी किस्म की इम्बिगुइटी है पीछे वाले किसी काम में, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, इसी के साथ ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है।